Good afternoon, students. Right. Today we are going to continue your quadratic equation. In that quadratic equation, first we'll read this chart key, like when ax square plus bx plus c is given, right? Then when you'll get the roots rational, irrational, what are the properties for rational, what are the properties for irrational, and all, right? If you want to ask any question, right, you can just write down in the chat. I'll come back to you, and accordingly we'll go further, right? So let's start with this. Is a chart for any quadratic equation. If you want to program this, as I said, you can go for the programming also. So in this chart, it's given that ax square plus bx plus c is equal to 0, right? Ax square plus bx plus c is equal to 0, right? What you understand by this, if ax square plus bx plus c is equal to 0 is given, right? Then we have to like say what is the value of discriminant and what we have to do if a, b, c are given. Like in this case, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is known as equation. As you know, if we are equating this with 0, so this is known as equation. So this is known as quadratic equation. Quadratic is given and equated with 0. So we are saying this is quadratic equation. If you'll put the values of a, b, and c, then accordingly you'll get a different type of quadratic equation, right? First, if in first case we are saying what if this a is equal to 0? What if this a is equal to 0? If a is equal to 0, one root of the quadratic equation will be at infinity. Why? Because this will be the linear equation, right? अगर मैंने a is equal to 0 लिख दिया, so this equation changed to bx plus c is equal to 0. So see, this is the quadratic equation, and bx plus c is equal to 0 now changing to the linear one. So if the linear equation is there bx plus c is equal to 0, x is equal to minus c by b. Only one root you can see, this one root is there, and this is the real root, and the other root is tending towards infinity if a is equal to 0. This is the first case for a is equal to 0, right? If a is equal to 0 as well as b is equal to 0, right? If I'm saying a b 0 hai, b bhi 0 hai, right? Both the things are 0. If a is equal to 0 as well as b is equal to 0, but c is not equal to 0, then both the roots are at infinity, right? Case third, when you are saying a, b, and c all are 0, right? A, B, C all are 0. So this is known as, the third case is known as identity, right? When A is equal to B is equal to C is equal to 0. Identity means for every values of x this will satisfy, right? वो quadratic होता है जिसके more than 2 values होते हैं. If anywhere you are getting कि any quadratic having more than 2 roots, right? मतलब साफ है कि वो एक आइडेंटिटी है, वो 2 रूट्स ही नहीं है, उसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, right? That will be always true. That's identity means always true. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This sin square theta plus cos square theta is equal to 1 is an identity, right? For each and every values of theta, this is true. You can't say कि square है, then this will be the quadratic. Sin square theta plus cos square theta, two values are there, but it will go for quadratic, right? And this quadratic is into the identity,
And for identity, this will be always satisfying for each and every values. We can say key satisfying each and every values of x. That's called the identity. Please note down just three things. First case, only a is equal to 0. Second case, a is equal to 0 as well as b is equal to 0. Third case, a is equal to 0, b is equal to 0, and c is equal to 0. Do it fast. Done. Now, so this was the first case, a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0. Now, what if in that scenario, if I'm saying a is not equal to 0, right? Now coming this side, a is not equal to 0, right? If a is not equal to 0, so this must be a quadratic equation. अब ये जो quadratic equation मेरे पास है, right? इस quadratic equation के लिए what we can say कि like now we have to see this discriminant, right? ये जो discriminant मेरे पास आएगा, इसे मेरे को देखना है, right? ये discriminant की values क्या आ रही होगी, okay? ये डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क्रिमिनेंट मींस d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ तीन बातें होंगी. फर्स्ट d ग्रेटर देन 0, लास्ट क्लास भी किया था हमने, d इज इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0. इफ वी आर सेइंग d ग्रेटर देन 0, राइट, d greater than 0. D greater than 0, D means b square minus 4ac greater than 0. Roots are real and distinct, right? Roots of the quadratic equation are real and distinct. This is the first case, right? Second case, if D is equals to 0, means b square minus 4ac is equal to 0. Roots are real and equal, right? And third case, d less than 0, right? b square minus 4ac less than 0. Roots are imaginary, right? And distinct. But ये पूरे की पूरी जो वर्किंग आपके पास हो रही है, ये फर्स्ट केस मैंने लिया या सेकंड केस मैंने लिया या थर्ड केस मैंने लिया, ये ट्रू होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है कि दिस इज ट्रू only if कब ये ट्रू होगा? when we are saying a b c belongs to real number. अब ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर की बात हो गई. व्हाट इज दिस रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ये पहले नोट करना, जल्दी से सबने किया होगा बट फिर भी किसी के हों कुछ छुटे हुए तो this I have written there, right? यही चीज लिखा हुआ है. Go with this only. Drew, you want to ask anything? Yes, sir. Sir, जैसे आपने बोला d is smaller than, मतलब 0 is greater than d, तो सर उसमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट ही होगी, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट इक्वल क्यों नहीं हो सकती? अभी उसे प्रूव करके बता देता हूँ बेटा ना, थोड़ी सा टाइम दो, अभी आ जाएगा. ओके सर. वन क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, ध्रुव का वेरी गुड क्वेश्चन, कि इफ यू आर सेइंग d लेस देन 0, तो सर व्हाई यू आर श्योर कि वो इमेजिनरी रूट्स तो होंगे? इट्स ओके, क्योंकि d लेस देन 0 है, राइट?
लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे यही जरूरी कैसे है, वो रियल क्यों नहीं, इक्वल क्यों नहीं हो सकते, राइट? आता हूँ उस पर, बट पहले सी इमेजिनरी के लिए एक बहुत अलग सा मैथमेटिक्स होता है, दैट्स कॉल्ड फॉर द इमेजिनरी, राइट? यूजुअली हम लोग जानते जो हैं जिस पर वर्किंग होती है अंडर रूट ऑफ -1। ये शुरू से ही बहुत लोगों को परेशान किया है इसने, अंडर रूट ऑफ -1। बहुत लोगों ने कोशिश भी की कि व्हाट इज द वैल्यू, तो हार के ये पता चला कि भैया वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि एक अच्छे से हमने अंडर रूट ऑफ -1 को आई से डिनोट कर दिया। एंड दिस आई जो मेरे पास है वो होता है आयोटा, right? This is known as iota, right? Iota Greek word है, this is for imaginary, right? तो कभी भी मेरे पास अंडर रूट में कुछ भी नेगेटिव मेरे पास आ रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी विथ पावर 2 पावर हो, 4 पावर हो, राइट, 6 पावर, ये जितने भी पावर्स है, 1/2 हो, 1/4 हो, 1/6 हो, राइट, ये सब के सब नंबर हमारे इमेजिनरी को जाते हैं। बट अगर यहीं पर मैं इसे -1⁻⁻³ कह रहा हूँ, ये सब इमेजिनरी, राइट? -1⁻⁻⁻3, -1⁻⁻⁵, -1⁻20, 19, 1 अपॉन, ये जितने भी हैं ये सब रियल है, ये इमेजिनरी, राइट? जब इवन पावर -1⁻1/2n होगा, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, देन ओनली दिस विल बी इमेजिनरी। हमेशा इमेजिनरी नहीं होते हैं, राइट? इमेजिनरी होने के लिए कंडीशन पावर को इवन होना चाहिए 1 अपॉन में, देन ओनली यू विल गेट अ इमेजिनरी, राइट? अब ये इमेजिनरी होंगे तो डी इमेजिनरी है। ध्यान से एक एक करके अब आता हूँ, चार्ट पे चलता हूँ, फिर से ध्यान दो। तो हमें ये पता चला कि डी पर हमारे पास तीन बातें हो सकती है, डी लेस देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है, या डी ग्रेटर देन 0 है, राइट? यहाँ के केस के लिए डी ग्रेटर देन 0 है, ये तीन केसेस। तो स्टार्टिंग ही चलो रूम ने बोला तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ डी लेस देन 0, राइट? क्या हो रहा होगा इस पर पूरी कहानी करता हूँ, पूरे स्टेटमेंट आपको बताता हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, right? For any quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, right? d less than 0, right? कंडीशन ये है a b c belongs to real number, इसी के लिए ये स्टडी कर रहे हैं। आगे जाके ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही मिलेगा, बाद में a b c belongs to real की जगह पर इमेजिनरी भी आ सकते हैं, राइट? वो बाद में, अभी हम लोग जितना भी स्टडी कर रहे हैं वी हैव टू बी श्योर कि हम लोग ये पूरा ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए स्टडी हो रही है, राइट? नाउ अब डी लेस देन 0, राइट, इमेजिनरी। सो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, इसके रूट्स निकालने हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, एंड जो भी वर्किंग हो सकती है वो काम हमें करना है, राइट? तो स्टेप फर्स्ट, अगर रूट निकालने हैं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा, वही हमने किया। सेकंड स्टेप रहेगा d निकालना, d के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 20 इज माइनस 16, राइट? b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने किया तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आया, राइट? एंड वी नो दैट दिस इज अच्छा सा एक लेस देन 0 नंबर आ रहा है, राइट? नाउ अब फॉर्मूला लगाता हूँ x के लिए, राइट? तो वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर d बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस माइनस 16 का अंडर रूट बाई 2a इज 1, माइनस 2 प्लस माइनस 4i बाई 2, माइनस 1 प्लस माइनस 2i, राइट? माइनस 1 प्लस माइनस 2i, राइट? क्योंकि 16 को हमने अंडर रूट 4 और i माइनस 1 के लिए हम लोगों ने अभी जो बात की थी वो हमने इसके ये वाली वैल्यूज, राइट, वो लगा दी, राइट? दोनों मिलाने के बाद मेरे पास ये आ गया, राइट? तो ध्यान से अगर आप देखो तो जो आपके पास इक्वेशन आया है उस पे एक रूट आया -1 प्लस 2i, सेकेंड रूट आया -1 माइनस 2i, राइट? ये पहला रूट अगर अल्फा है, दूसरे को हम लोग बीटा बोलते हैं, राइट?
ओके, ये 2i आने के लिए ये 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 को ये डिवाइड करेगा तो -1 देगा, 4 को डिवाइड करेगा तो 2i देगा, राइट। एंड यहाँ से ये नंबर जो है -16, तो ये दो पार्ट में हमारा वर्क किया। एक पार्ट जो हमारे पास था √-16 अगर मेरे पास था तो -1 इंटू 4 स्क्वायर का अंडर रूट था, ये 4 स्क्वायर का 4 आया, एंड ये मेरे पास जो है वो आई स्क्वायर लिख दिया मैंने, -1 का वैल्यू थी, राइट। -1 जो होगा वो आई स्क्वायर उसे लिख दिया, अंडर रूट -1 आई था, राइट। तो अब यहाँ से ये आ गया 4i, ओके। एंड कैलकुलेशन के बाद, इज इट ओके, राइट। नाउ तो मेरे पास जो रूट्स आ गए जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, -1 + 2i एंड -1 - 2i, राइट। ये दो रूट्स मेरे को आ गए, एक को नाम मैंने दिया अल्फा, एक को नाम मैंने दिया बीटा, राइट। चलो एक बार ऐसा करता हूँ, यहीं पर अगर हमारे पास ये दो चीजें आ चुकी हैं तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1 + 2i प्लस -1 - 2i, राइट। ये दोनों आ गए तो ये हो गया -2। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, राइट। -1 + 2i इंटू -1 - 2i, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, राइट। मैंने दोनों से माइनस बाहर निकाल दिया ना, तो एक आ गया 2i - 1, सेकंड आ गया 1 + 2i या 2i + 1। We know that this is a plus b, a minus b, to a square minus b square, right? 2i का होल स्क्वायर, राइट। और एक माइनस साइन बाहर में रखूंगा ना, ये हो गया -4 -1 और पूरे के आगे माइनस साइन, तो दिस इज कमिंग एज 5, राइट। तो मेरे पास प्रोडक्ट जो आया वो आया 5 एंड सम आया वो आया -2, राइट। वैसे भी सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मैं देखा, तो एक ध्यान से अगर देखने की यहाँ पर ये बात है कि एक रूट मेरे पास ये था, दूसरा रूट मेरे पास ये था, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, राइट। सिमिलरली सेकंड केस में ये दोनों जब कॉन्जुगेट मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपने आप में पूरी वैल्यूज जो आ रही है वो रियल आ रही है। मतलब कभी भी मेरे पास अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मेरे पास अगर एक अल्फा प्लस आई बीटा रूट है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा है, तो दोनों का सम जो होता है वो 2 अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है अल्फा स्क्वायर माइनस, राइट, प्लस बीटा स्क्वायर ना, ये प्रोडक्ट है और ये सम है। तो सम भी अगर ध्यान से देखो तो ये रियल नंबर है, प्रोडक्ट भी रियल नंबर है, राइट। सम भी मेरे पास रियल नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट भी रियल नंबर आ रहा है। ये ऐसा कब हो रहा है, ये होने के लिए ये दो नंबर जो है उन दोनों को एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए, राइट। एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए, देन ओनली वी हैव टू राइट कि दोनों हमारे सम और प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों के दोनों हमारे रियल आते हैं, राइट। नाउ जो आपके क्वेश्चन पे अब मैं आता हूँ, ये मुझे प्लानिंग करनी थी मेरे लिए। यस बेटा, आप लोग नोट करना चाहोगे, ये मैं छोटा कर देता हूँ, ये नोट इट डाउन प्लीज, आराम से नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
डन। यस बेटा, अब एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डन। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूं। सी मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है कि मेरे को दो जगह पर ये पूरी काम होती है, राइट। एक रियल नंबर पर ये पूरा काम होता है और इसी तरह की वर्किंग जो होती है रैशनल इरैशनल के लिए भी होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ में रखने के लिए दोनों को, तो एक बार रैशनल इरैशनल को भी डील करूंगा, साथ ही साथ में एक बार डील करूंगा इमेजिनरी को एंड रियल को, राइट। दोनों सिचुएशन को हम लोग देखते हैं क्या वर्किंग हो सकती है, एक बार रैशनल इरैशनल के लिए और एक बार इसी चीज को, इसी नंबर्स के लिए हम लोग इमेजिनरी एंड रियल के लिए वर्क करेंगे, राइट। तो स्टार्ट विद दिस, राइट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लो मैंने ये सिचुएशन लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसके सम ऑफ द रूट्स मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू होती है सी बाई ए, राइट। इन फर्स्ट केस व्हाट आई एम सेइंग, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ए बी सी मेरा रैशनल नंबर है, राइट। ए बी सी मेरे रैशनल नंबर्स हैं, राइट। अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं सो राइट, ए बी सी अगर रैशनल नंबर हैं तो अल्फा प्लस बीटा को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। अल्फा इंटू बीटा को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। ये बिलोंग्स टू क्यू का मतलब रैशनल होता है ना, राइट। अल्फा प्लस बीटा को भी रैशनल नंबर होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। दोनों को हमारे रैशनल नंबर होने चाहिए, राइट। अब अगर दोनों हमारे पास रैशनल नंबर होने चाहिए एंड लेट सपोज आई एम सेइंग कि लेकिन अल्फा और बीटा अलग अलग इरैशनल है, क्यू डैश मतलब इरैशनल है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये अल्फा प्लस बीटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, याद होगा, राइट। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, right? No problem. See, alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c. So alpha plus beta की वैल्यू होती है minus b by a and alpha into beta की वैल्यू होती है c by a, right? So यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन लिया है, यहाँ पर हमने एक सिचुएशन लिया है a b c अगर मेरे पास रैशनल नंबर है, राइट। अगर ए बी सी, कोई नहीं बेटा, ध्यान से देखना ना, कोशिश करता ना, मैं अलग से नहीं तो बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है रैशनल, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है रैशनल, राइट। एंड इंडिविजुअली अल्फा और बीटा जो है वो अगर मान लूं मैं कि मेरे इरैशनल नंबर हैं तो क्या सिचुएशन होगा, राइट, क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये हमें बात करनी है। मतलब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है या क्वेश्चन जिसकी बात हो रही है कि अगर एक रूट आपके पास p प्लस रूट q है और दूसरा रूट आपके पास p ऐसा सिचुएशन ले लो r प्लस रूट s है, राइट। अगर एक रूट आपके पास p प्लस रूट q है, दूसरा रूट आपके पास r प्लस रूट s है और इन दोनों का सम जो है, राइट, रूट p रूट q और रूट s सर्ट्स हैं, इन दोनों का सम जो है वो आना चाहिए रैशनल नंबर, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए इरैशनल नंबर। इन दोनों, ये दोनों इरैशनल हैं और प्रोडक्ट जो मेरे पास आना चाहिए वो आना चाहिए फिर से रैशनल नंबर, राइट। ये कब पॉसिबल होगा, राइट, कि एक नंबर मेरे पास p प्लस रूट क्यू है, एक नंबर r प्लस रूट s है, ये दोनों को सम करूं तो आना चाहिए रैशनल नंबर और इन दोनों को प्रोडक्ट भी मैं करूं तो आना चाहिए रैशनल नंबर। ये कब पॉसिबल है, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी कब रहेगी कि ये हमारे पास
राइट, ये वर्क कर जाए। ठीक, एक सिंपल सा सिचुएशन मैंने ये रखा है। आई गेस सभी को क्लियर है ये? एनीवन वांट टू आस्क? कोई इसमें कंफ्यूजन हो या कोई पूछना चाहोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो मैंने अभी तक बताई उसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है? नो सर, वेरी गुड। सी, तो अब सिचुएशन ये है मेरे पास, जो सिचुएशन पर हम लोग आके रुके हैं वो सिचुएशन है ये दो का सम मेरे को रैशनल चाहिए। तो पहले मैं सम कर लूं, p प्लस रूट क्यू प्लस r प्लस रूट s की वैल्यू को रैशनल होना है, राइट। बेसिक मैथमेटिक्स चलेगा, राइट, क्लास 8 की मैथमेटिक्स चलने हैं, राइट। सम भी रैशनल होना चाहिए एंड प्रोडक्ट भी रैशनल होना चाहिए, राइट। सम एंड प्रोडक्ट जो सॉर्ट्स के रैशनल होने चाहिए, राइट। तो अगर इसे रैशनल होना है, राइट, तो ये p रैशनल है, r रैशनल है, तो ये जो नंबर मेरे पास दिया हुआ है अंडर रूट क्यू और अंडर रूट एस, ये दोनों इररेशनल है और इस तरफ हमारे पास रैशनल आ रहा है और इररेशनल की जगह पर जीरो आ रहा है, राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या पॉसिबल होगा कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है और कुछ है नहीं। मतलब मैं पूछ रहा हूं 2 प्लस रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 7 आना चाहिए। तो रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, ये दोनों में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आई गेस सभी को अब, राइट। नंबर लिखने पर तो 100% समझ में आ रहा होगा। एक नंबर मेरे पास है 2 प्लस रूट एक्स और दूसरा नंबर मेरे पास है 5 प्लस रूट वाई, और दोनों को सम करने पर 7 आए, अंडर रूट का कोई टर्म ही ना आए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, राइट। पहला केस तो ये हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों जीरो ही हो जाए, राइट। पहला केस तो ये हो सकता है कि एक्स वाई दोनों जीरो हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक अंडर रूट एक्स हो और अंडर रूट वाई वाला माइनस के साथ हो, राइट। मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई हो, राइट। तो अगर मेरे पास वो नॉन जीरो है, क्यों नॉन जीरो है? क्योंकि हमने कही दिया इसे कि जो रूट्स आ रहे हैं वो इररेशनल है, मतलब वो p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में ही होंगे, तब की बात हो रही है। तो जीरो वाला केस तो है नहीं मेरे पास, तो नॉन जीरो वाले केस में मैं बोल सकता हूं कि अगर p और q दोनों एक साथ हो और बीच में माइनस साइन हो, मतलब हमें फर्स्ट कंडीशन, यहाँ वाले कंडीशन से ये तो 100% ये मिल गया कि अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो सेकंड रूट r माइनस रूट q होगा। इज इट ओके टू एवरीवन? वेरी गुड। आदिनाथ, भौमिक, क्या दिक्कत है? Arav, any problem? Just ask, please. सर्ट्स होने का मतलब होता है वो अंडर रूट में होते हैं बेटा, तो वो अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, राइट। सर्ट्स होने का मतलब अंडर रूट सॉल्व नहीं होते, राइट। वेरी गुड। और अब raise your hand please. Unmute yourself. Yes, Arav. Sir, I'm not understanding about that root x is equals to minus root y. After that, how you took that p plus that? I did not understand that part. Okay, just tell me one thing now. If I'm saying one number is 2 plus root 3, right? Other number is 5 plus root x, and this must be equal to 5. What is the relation between root x and this root 3? Arav? What is the relation between root 3 and root x? Just a minute, wait now. Class 8th में you have studied that one time I'm writing 2 plus root 3 plus 5 plus 2 root 3 plus 7 plus
3 root 3 is equals to x plus root 3, right? What is the value of x and y? What is the value of x and y? So 7 plus 7, 14 plus 3 to 5, 6 root 3 is equal to x plus y root 3. Arav, are you there? Yes, unmute yourself. Yes, sir. Yeah. You see that? ये जो मैंने अभी लिखा, this 14 plus 6 root 3 is equal to x plus y root 3, right? It is given, right? It's written there, right? What is the value of x and y? 14 and 6. Why 14 and 6? You are not very sure? Yes, sir. I'm not understanding quite well this part. You know about rational, irrational. You are in class 9, 10th or 8th? 8th. I mean in 9th. Sorry, sir. Okay. You have heard about rational, irrational number, Yes, sir. right? Irrational equated with same irrational only, or rational equated with same rational only? You know about this? Rational equated with same rational number, irrational equated with same irrational numbers? No, sir. No? If I'm saying like x plus root y is equals to 2 plus root 5. So what is x and what is y? 2 and root 5. Why? Why x is only 2 or root y is only this? Because rational equated with Because you rational, are showing. irrational equated with irrational. Huh? The same thing you did here only, right? When you are saying rational 14 equated with x and this equated with this. Okay? Okay? Yes, sir. Right? So rational equated with irrational or irrational equated, right? So in this case, if I'm adding to 2 plus this will be 7 only. ये 7 गया, but ये दोनों मैं cancel करना पड़ेगा because right side में तो कोई irrational number है ही नहीं. So these two must be cancel out with each other. Getting my point? Yes, sir. Right? So both of them are cancelled. Irrational will be cancelled out now. If you are writing 5 plus root 2, right, or 5 plus 3 root 2 is equals to x plus 5 root 2, right? X plus y root 2, right? So what is the value of x and y? So rational will be equated with rational. So this 5 will be equated with x, and irrational will be equated with irrational. So 3 root 2 will be equal to y root 2. Is it okay? Yes, sir. So what is the value of x? 5. And what is the value of y? 3. 3, right? So now the last thing, I guess you are able to now crack this, right? If I'm saying x plus root y is equals to p plus root q. So what is the value of x? P. Very good. What is the value of y, root y? Root Q. Very good. So now coming back to the question, जो question हमारे पास पहले था, I'm saying p plus root q plus r plus root s is equals to some p plus r. So what is the relation between q and s? What is the relation between q and s?
root q and root s. They are same. They have to. Sir, you have muted yourself. I'm muted. Yes, sir. Now it's audible. Yes, sir. So the first case, what you can say, what is the value of p and root q, so that it must be rational. Minus root q should be minus root 3. Root q should be 3 only, na? So minus to मैंने पहले से दे दिया, so both will be cancelled out. So q will be 3 only, right? Q will be 3 only, right? So Yes. I can say that this must be rational. First case, it's okay. And now we are using the second case. So 2 plus root 3 is equal to p minus root 3, right? So what would be the value of p such that it will be rational, right? So multiply both the numbers, right? This is 2p minus 2 root 3 plus p root 3 minus root 3 into plus root 3. This will be like minus 3. So this is coming as 2p minus 3 plus root 3 times p minus 2, right? ये नंबर मेरे को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ गया, राइट? अब ये नंबर को रैशनल होना है. हाउ इट्स पॉसिबल कि इट वुड बी रैशनल? इसमें ये वाले टर्म जो है, जो फर्स्ट वाले टर्म है, दिस इज रैशनल. ये वाला तो रैशनल नंबर है. ये वाले टर्म में एक रूट 3 है, बट p इज अ रैशनल नंबर. तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये नंबर रैशनल हो? डू यू हेल्प मी? What is the value of p such that this whole system will be rational? Very good, Adinath. Arva, Rav, are you there? Yes, sir. Yes. Tell me, what would be the value of p such that it must be rational? Minus See, 1. this one is the rational number. 2p minus 3 is a rational number because p is a Yes. rational number. Is it okay? Right? Yes, sir. Root 3 into p minus 2 is a rational number or irrational number? Rational number. What is the difference between rational and irrational numbers? Root 3 is a rational number or irrational number? Irrational number. So root 3 into some rational number is rational or irrational? Irrational. Irrational. And it has to be rational. तो मैं क्या values p को दूं कि ये number ही यहाँ पर ना रहे, right? So what would be the value of p such that it becomes 0? What will you put as p that it becomes 0? Very good, Vamik. Very good, Aparna. Veer, very good.
you have to make this irrationality zero, right? ये जो irrationality है इसे zero मेरे को बनाना है, तो मैं p को क्या पुट करूं कि it must be zero. The value of p, I guess value of p is 2 only. At 2, this is 2 minus 2 will be 0, so this will be 4 minus 3 only. This is a rational number. So ये पूरी थ्योरी से क्या समझ में आई बात? ये समझ में आई कि अगर मेरे को एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसका एक रूट अगर मेरे पास कहीं से 2 प्लस रूट 3 हो गया तो 100% दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा अगर a b c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, राइट? अगर a b c रैशनल नंबर है तो अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो 100% सेकंड रूट को 2 माइनस रूट 3 होना पड़ेगा, राइट? मींस इफ आई एम सेइंग, राइट, दिस इज द फर्स्ट केस, राइट? बट ध्रुव के क्वेश्चन का अभी भी आंसर्स इट हैज टू कम, राइट? आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कोई पूछना चाहोगे कुछ? हर्षल, you want to ask anything? Please go ahead. Sir, in the previous page, the thing. Sir, in the previous page, the thing which you highlighted in. Sir, in the previous page, the thing which you highlighted in green, how did you brought that? From the previous step only. This. Sir, you took common. Yeah. Root 3 is a common from term, and this is 2p. Root 3 into root 3 is 3 only. So I have written this. Okay. Yes, sir, understood. Okay. So Thank you, sir. this, yeah, it's okay. Anyone else? Right? So what is the theory in this? तो हमारे पास क्या आया कि d is equals to d greater than 0 के लिए अगर मेरे पास केसेस हैं या d less than 0 के लिए, राइट? 3 केस थे, d greater than 0, d equal to 0, d less than 0, राइट? अब d less than 0 पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होगी. क्या रहेगी? अगर मेरे पास आ गया एक नंबर 2 plus 3i, राइट? तो सेकंड नंबर 5t plus q मैंने लिया, इसके सम को रियल होना चाहिए, मतलब i का टर्म वहां नहीं होना चाहिए, एंड इसके प्रोडक्ट को भी रियल होना चाहिए, उसमें भी i के टर्म नहीं होने चाहिए, राइट? ये दोनों ही मेरे पास कंडीशन है. कोई हेल्प करेगा मेरे को इस क्वेश्चन के लिए, राइट? i मैंने बताया था ना, i इज आयोटा अंडर रूट ऑफ -1. अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था. अपर्णा, वेरी गुड. संगमित्रा, q इज वेरी गुड, 3. p को भी सोचना एक बार. ध्रुव, इज इट क्लियर ना बेटा? What is the value of, पहले तो p और q की बात करूंगा, राइट? इन द फर्स्ट केस ये 3i और ये qi, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ओनली इफ, राइट? इफ आई एम सेइंग q इज इक्वल टू 3 हो जाए, q की वैल्यू 3 होगी तो बोथ विल बी कैंसल आउट, राइट? एंड सेम वे इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म, राइट? इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखता हूं क्या आता है. 2 into p is 2p minus 2i into q plus 3i into this is 3qi minus 3qi square, right? So this is 2p
plus I is common out, 3q minus 2q. This is p only. Three p minus 2q minus I square is minus 1. This is 3q. Right? So when we have to multiply, ये दोनों को multiply किया, 2p मेरे पास आ गया, right? And 3q मेरे पास आ गया, ये 2 into qi, 2qi मेरे पास आ गए, and ये 3qi मेरे पास, ये पूरे नंबर्स आ गया, right? अब ये पूरे नंबर्स को like q की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई ना, एंड वी हैव टू सॉल्व. अब ये मेरे को बोलना है कि ये वाले टर्म जो मेरे पास है उसमें जो आई वाला टर्म है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? वो प्रेजेंट नहीं होना का मतलब ये हुआ कि उसे 0 होना चाहिए. तो 3p माइनस 2q को 0 होना चाहिए, राइट? एंड q की वैल्यू मैंने पहले से निकाल ली है, तो 2q इज इक्वल टू 3 इंटू p. q की वैल्यू आ गई 3, राइट? सो p इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं p पर ही पहुंच जाता हूँ सीधा, क्योंकि जरूरत क्यों, q मैंने पहले से निकाला है, p की वैल्यू आ गई 2. q की वैल्यूज मैंने यहाँ से पुट कर दी, राइट? तो p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3. मतलब एक नंबर 2 प्लस 3 आई है तो दूसरा अपने आप 2 माइनस 3 ये आ गया, अगर इसके सम को एंड प्रोडक्ट को दोनों को हमारे रियल होना चाहिए तो, राइट? एंड इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने ये देखा, अगर सम एंड प्रोडक्ट दोनों को रैशनल होना चाहिए तो एक नंबर अगर 2 प्लस रूट 3 होगा तो 100% दूसरा नंबर 2 माइनस रूट 3 होगा, राइट? जल्दी से नोट करें, फिर क्या कंसेप्ट आपने सीखा वो मैं बताऊं. डन? डन एवरीवन, राइट? हमारे पास क्या थ्योरी आई उसको समझो ना. थ्योरी हमारे पास ये आई कि अगर मेरे को कॉन्जुगेट तैयार करने हैं, मींस अगर मैंने एक रूट रखा हुआ है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट में क्या रखूं, इसका सम एंड प्रोडक्ट दोनों रैशनल आएगा, तो दिस विल बी 2 माइनस रूट 3, राइट? राइट? एंड सिमिलरली अगर एक रूट 2 प्लस 3 आई मेरे को गिवन है, दूसरा रूट 2 माइनस 3 आई, राइट? कब? जब इसके सम एंड प्रोडक्ट इसके रैशनल होंगे और इसके
रियल होंगे, राइट। What, Harshul? Unmute yourself. Okay. राइट, तो ये एक अच्छी खासी काम आ जाएंगे आपको वन यू रिक्वायर्ड, राइट, कि रूट्स हमारे पास कहाँ से, लाइक, या कैसे आ रहे होंगे। तो हम लोग फिर से बैक टू द क्वेश्चन, राइट। क्या हमारे पास क्वेश्चन था उसे देखते हैं। हम लोग इस पे बात कर रहे थे, राइट। ये हमारे पास कहानी चल रही थी जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। वर्किंग क्या थी कि हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, उस पर हमारी वर्किंग क्या रहेगी वो चल रही थी, राइट। सो अब मेरे पास काफी सारे कहानी अब बताने के लिए हो सकता है। d मेरे पास अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे होंगे मेरे, राइट। अब जब रूट्स मेरे रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर आ गए हैं तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, राइट। रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, राइट। रूट्स आर रैशनल और इरैशनल, राइट। ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा डी पर। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्या डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि मेरे पास जो भी नंबर आ रहे हैं वो, राइट, डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो समझिए जो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ गिवन है, इस फॉर्मूले को मैं बड़े अच्छे से यूज करके बोल सकता था, ये फॉर्मूला जो गिवन है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूले पर अगर अंडर रूट डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाता है तो मैं बोलूंगा रूट्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो हमेशा पूरा रैशनल होगा अगर ए बी सी रैशनल है, राइट। क्या थ्योरी बनी आपकी? थ्योरी ये बनी, इफ ए बी सी आर rational number, then there would be two cases, right, when d is a perfect square, d is not a perfect square, right। अगर d perfect square मेरे पास हो रहा है, d कोई भी नंबर आ रहा है 16, 25, 49, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, d परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं मेरे पास, d इज इक्वल टू कोई भी p बाई क्यू का फॉर्म है, एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर मेरे पास आ रहा हो, राइट, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो, राइट, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो d परफेक्ट स्क्वायर अगर मेरे पास है, p बाई क्यू का फॉर्म हो, इंटीजर का स्क्वायर हो, राइट, तो उस समय रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रैशनल, राइट। एंड अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है और ए बी सी मेरे रैशनल जो कि ऊपर में ही गिवन है, तो मैं बोलूंगा रूट्स आर इरैशनल। नोट डाउन प्लीज। यस, यस ध्यान।
इरेशनल नंबर, इरेशनल और इमेजिनरी दो अलग अलग बातें होती है बेटा। इरेशनल √3, √5, इसके अंडर रूट नहीं निकल पाते, क्यूब रूट नहीं निकल पाते हैं, दैट आर नोन एज इरेशनल। एंड अंडर रूट के अंदर माइनस साइन अगर आ जाता है तो इसे बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी। ये है इरेशनल, ये है इमेजिनरी। ये नोट करें प्लीज सभी लोग, डू इट फास्ट। चार्ट में ये बातें नहीं दे रहेगी बेटा ना, ये सब चार्ट में जो लिखा हुआ है सिंबॉलिक, उसको समझा रहा हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा वेयर यू हैव टू नो कि रूट्स आर रैशनल और इरैशनल क्या रहेंगे। डन, ये भी नोट हो गया। ओके एवरीवन, अब आपको निकालने हैं जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें किसके रूट्स हैं, रैशनल है, इरैशनल है, इमेजिनरी है, और वो रूट्स क्या होंगे। राइट, पहले केवल इतना ही। राइट, स्टार्टिंग। ओनली द कैलकुलेशन पार्ट, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करना। राइट, पहला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दूसरा रूट्स फाइंड करना है, तीसरा सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, चौथा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें पहले 5 क्वेश्चन के। राइट, मैक्सिमम 7 मिनट यू हैव फॉर दिस।
Done, everyone? If you have done, write down yes. Very good. Raj, very good. Meghna, very good. Ansul, do it fast. Bhagyasri, Atharva, Vamik, Devanshu, Hers, Hitvi, San, Jeet, do it fast. Meghna, Yuvraj, do it. Yes. Adi, Vyom, विष्णु, चलो मैं शुरू करूं? Can I start this? Right. First question, right? I guess, right? Discriminant की केवल बात करूं, right? So we can say in this first d is equal to b square, right? Minus 4ac is minus 16 first. Second, roots, right? Alpha और बीटा जो भी हमारे पास आएंगे is equal to minus b, that's plus minus under root of b square minus 4ac जो under root d हुआ है upon 2a, 2 plus minus
under root of minus 16, and we know that this is 4i upon 2 is 1 plus minus 2i, right? And sum of the roots for any quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0. Sum of the root is minus b by a, product of the root is c by a. Sum of the root, right, is minus b by a. Product alpha into beta is equal to c by a is 5. Right? ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट, d is minus 16, right, roots are this 1 plus this, and right, sum of the root and product of the root. Right, sum of the root and product of the root. Is it okay to everyone? Right, your first question. Second is x square minus 5x plus 4, right? X square minus 5x plus 4 is equal to 0, right? First, discriminant b square minus 4ac, right? ये आ गया 9. Roots minus b plus minus under root b by 2a, right? 5 plus minus 3 by 2, 8 by 4, and 5 minus 2, 1, right? Sum of the roots minus b by a, product is c by a. How many of you got right? Write down please. Very good, everyone. Raise your hand, hustle. Sir, you got root as 4 and 1. 5 plus 3, 8 by 2 is 4. Sir, and 1. 5 minus 3 by 2 is 1. Okay, sir. Okay. Okay, now, so next is x square minus 6x plus 8, right? X square minus 6x plus 8 is equal to 0, right? Again, d b square minus 4ac, 4, right? And roots minus b plus minus root 4 by 2a, right? 6 plus minus 2 by 2, 4, 6 minus 2, 4 by 2 is 2 only. Is it okay? Is it okay? And roots are again ये दोनों, right? And then next sum of the roots, sum is minus b by a, 6. Product is c by a,
right? 8, right? So these are the simple question, but उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, 2x square minus 6x plus 3, b square minus 4 into 3 into 6, ट्वेल्व, राइट? d मेरे पास आ गए 12, राइट? रूट्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 6 plus minus root 12 is 4 into 3 by 4, right? 6 by 4 plus minus 2 root 3 by 4, right? 3 by 2 plus minus root 3 by 2. Okay, everyone. Okay, right? तो simple question है, but like the first way you can do this, जो भी given है 3x square minus 5x plus 4, right? 3x square minus 5x plus 4 is equal to 0, right? Now a, b, c given. First is discriminant b square minus 4 into 3 into 4, 25 minus 48, right? Minus 23, right? ये अंडर हमारे पास आ गया, right? So minus b plus minus under root of b square minus 4 into 3, ये रूट्स आ गए, राइट? ये आ गया 5 प्लस माइनस आई रूट 23 बाई 12, राइट? दोनों रूट्स हो गए, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, राइट? दोनों रूट्स मेरे पास आ गए, राइट? सम ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या है? माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? 4/3. इज इट ओके? राइट? तो ये रूट्स अगर निकालनी है तब हम लोग वर्किंग किस तरह से रहेगी, राइट? बट आई गेस कितने लोगों का सही रहा? रेज योर हैंड और जस्ट राइट डाउन यस. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट राइट? अरे वाह, वीर, ध्रुव, संमित्रा, ज्ञानेश्वर, वेरी गुड. भाग्यश्री, वेरी गुड. अपर्णा, वेरी गुड. विष्णु, वेरी गुड. शाश्वत, वेरी गुड. देवांशु, very good. Very good, very good. Anyone want to ask anything? Meghna, very good. Anyone want to ask anything? No? Arshal? Yes? Yes, please. Not wrong. You did. Huh? You? Sir, product 4/3. C by A, beta, C by A. A, B, C given, na? C by A. Right? AX square plus BX plus C. Right? C by A. C. Now, next thing. So, this is how to, right? How to get roots, sum of the root, product of the root, and discriminant. ये छोटी छोटी चीजें, राइट? छोटे छोटे क्वेश्चंस, राइट? वो हम लोगों ने देखे.
अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से एक आगे बढ़ने की बाद जिस पर हम लोग वर्किंग कर पाए एंड थोड़ी अच्छी वर्किंग कर पाए क्वाड्रेटिक के, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। क्वेश्चन अब थोड़े जो नंबर्स में आ रहे हैं तो थोड़े सिंपल हो जाते हैं, नंबर्स में नहीं होके अगर वो क्वेश्चंस हमारे पास रिटर्न फॉर्म में आ जाते हैं तो वो थोड़े टफ हो जाते हैं, अगर ए बी सी पी क्यू आर अल्फा बीटा वगैरह वगैरह यूज होने लग जाए, राइट? यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर उस तरह के नंबर्स मेरे पास हैं तो रूट्स हमारे पास कैसे निकलेंगे एंड हाउ टू सॉल्व दिस, राइट? सो राइट डाउन प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस p square minus q square minus r square is equal to 0, right? Prove that roots are real and distinct. Real and distinct. Saswat, you want to ask anything? Yes, sir. What you wrote, PT? Prove that. PT. Okay. Thank you, sir. Not PP. PT. PT. Prove that. Prove this. Prove that. Parna done. You have to ask. Very good. Aparna, Adi, Yuvraj. Very good. Only what you have to do, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए just you have to go through what you have to do actually. मेरे को करना क्या है, मेरे को चाहिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट? अगर मेरे को ये रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा डिस्क्रिमिनेंट, राइट?
सो आई हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2p, सी की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट. So discriminant is equal to b square minus 4ac, right? So this b square is 2p का whole square minus 4a p square minus q square minus r square. 4p square q square cancel कर दिया मैंने. 4p square minus 4p square plus 4 times q square plus r square. Both this will be cancelled, right? So you are getting 4 times q square plus r square, and we know that sum of two square number is always greater than equal to 0, right? But यहाँ पर मेरे को एक ये जरूरत हो गई कि q and r बस not equal to 0, then only we can say the roots are distinct. Otherwise it may be equal also if q is equal to r is equal to 0. That you have to write, right? कि आप q और r में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, then only we can write this. Is it okay, Aparna? Drew, you want to ask anything? Yes, Drew. सर कि मतलब आपने लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट सर वो सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हाँ, तभी तो मैंने बोला ना, इसलिए तो ध्यान नहीं दिया तुमने बात पे. मैंने क्या कहा कि यहाँ पर ये हमें लिखना पड़ेगा q is equal to r is non-zero, at least one is non-zero, then only we can write this number is greater than 0. अदरवाइज ये डिस्टिंक्ट वाली बात अपनी जो है वो फेल हो जाएगी. तो हमें अपने तरफ से प्रोवाइड करने का पड़ेगा कंडीशन एटलीस्ट वन ऑफ क्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0, right? If both qr is equals to 0, then our cases will be fail. So at least one of qr is not equal to 0, then we are saying roots are distinct also. Okay. Okay everyone, Harsul आप चेक करो. Mali, you have to check, right? चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो. Fast, note down fast. Write down please. L, M are real. L is not equal to M. Real number L is not equal to M. ये देना जरूरी है, otherwise zero हो जाएगा coefficient of x square. So that's a problem for us, right? Then prove that this equation has real and unequal. Roots are real and unequal. जल्दी. अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, बड़े आराम से करना ना, नो गड़बड़ प्लीज.
डन। अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, बड़े आराम से कैलकुलेशन करना ना। व्हाट you have to find discriminant, right? You have to find discriminant find करो, then you will get to know कि वो discriminant क्या greater than 0 है, less than 0 है, equal to 0 है, right? You have to find discriminant. First, कुछ भी ये अगर डिसाइड करना हो, रूट्स आर रियल, अनइक्वल, इक्वल, first and foremost thing is to find discriminant d. D is b square minus 4ac. A B C की values given है, you have to find discriminant. Yes, Meghna, it's right, but yes, Aparna, it's right. अब यहाँ से क्या करने हैं, d greater than 0 कैसे पता चला? सी, मैं करता हूँ ना, ध्यान से सब लोग देखना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। कैसे? ए की वैल्यू मेरे को गिवन है l माइनस एम, बी की वैल्यू गिवन है -5l प्लस एम, सी की वैल्यू गिवन है -2l माइनस एम, राइट? Discriminant, we know that discriminant, any discriminant is b square minus 4ac, right? a b c तीनों की वैल्यूज गिवन है, राइट? अब a b c के लिए d मैंने लिखा b स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 ac 2 इंटू l माइनस m का होल स्क्वायर, राइट? थोड़ा एक्सपैंड करता हूं, देखो एक्सपेंशन में क्या आता है। दिस d इज नथिंग बट 25 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 4 इंटू 2 8 l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, राइट? ये मेरे पास है।
Okay. Okay, see this. Done. Right, देखो क्या क्या बच गया आपके पास. So this is coming as d is equal to 25 plus 533 l square plus 33 m square minus 50 minus 16 34 lm. Right. अब ये जो क्वांटिटी आ गई, अब क्वेश्चन आपके पास क्या बचा ये सोचो. ये जो तुम्हारे पास आ गया, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में सोचना है. राइट. यहाँ के लिए मैं चाहूंगा आदिनाथ कुछ बोलना चाह रहे हो. राइट. ये क्या होंगे इसके बाद, कैसे सॉल्व करूं, यहाँ पर मैं कैसे बताऊं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या होगा, यहाँ से कैसे हम डिड्यूस करें. एनीवन मुझे ये, अब यहाँ क्वेश्चन समझ रहे होंगे सभी लोग. ये क्वेश्चन पे रुकने के बाद यू हैव टू टेल कि लाइक यहाँ से मैं इसे कैसे सॉल्व करूं. अपर्णा, you want to say anything? Yes, sir. Tell me. Sir, it should be 50 lm minus 16 lm, which is 34. हाँ, सही होगा. Sorry. What? सर कुछ नहीं. वो आपने पहले माइनस लगाया था, माइनस lm, तो वो गलत. वही उसी के लिए. ठीक है. It's okay now. Yes. हाँ. But my question is now how to solve this? इसे मैं कैसे रिड्यूस करूं, कैसे वर्क करूं इस पे. अब ध्रुव, you want to say anything? कैसे सॉल्व करेंगे? सर ऐसे कर सकते हैं कि देखो अगर एल स्क्वायर है तो मतलब वो ऑफ कोर्स एल से मतलब 34 एलएम से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एम स्क्वायर भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देता है, और उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 33 भी है, तो ऑफ कोर्स ये जो डी है वो पॉजिटिव ही होगा. ऐसे मैंने तो ऐसे किया. नहीं बेटा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. ना 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 ना. देखो मैं इसे लिखता हूँ 16l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 17l स्क्वायर प्लस 17m स्क्वायर प्लस 34lm. मैंने ये आपको एक हिंट दिया है. आप सब टेक योर टाइम, सोचो अब कि अब क्या हो सकता है. टेक योर टाइम. अब सबके पास 2 मिनट का टाइम है. थिंक ऑन दिस कि लाइक मैंने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, ये लिख.
डन, वेरी गुड। सी, अब ये क्या आया इस स्टेटमेंट में, 16 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 17 टाइम्स L प्लस M द होल स्क्वायर, राइट? कौन एक्सप्लेन करेगा इस पूरे कहानी को? प्लीज हेल्प मी। मैंने तो जितना कुछ मैथमेटिकल ऑर्डर में जो हो सकता है मैंने यहाँ तक में लिख डाला है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि ये मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप लिखने के बाद कि मेरा आंसर आ गया है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद दिस कि हाँ सर आंसर तो आ गया है, राइट? प्लीज राइट डाउन यस और अंडरस्टूड और एनीथिंग, राइट? Very good. Very good. Very good. सेवनटीन कॉमन लिया ना हर्षुल? 17 कॉमन लिया तो 17 इंटू 2 तो वही होता है ना? What is this, Dhruv? What is this? क्या बोला? इसके बाद सिर्फ ये कंडीशन डालनी होगी कि अगर इसको ग्रेटर देन 0 होना है तो फिर कि L इज नॉट इक्वल टू माइनस M, नहीं तो फिर वो सारे 0 हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, L स्क्वायर और M स्क्वायर क्यों 0 होगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, अगर L को माइनस M भी मैंने रख दिया तो माइनस M का स्क्वायर विल बी M स्क्वायर ओनली। अच्छा हाँ, मैं सेकंड पार्ट को देखा। हाँ हाँ, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट? क्योंकि मेरे पास कौन कौन से टर्म आ रहे हैं उसको ध्यान से देखो कि लाइक वी हैव टर्म L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, L प्लस M स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही तरीका हो सकता है इक्वलिटी साइन लेने का, जब L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू L प्लस M इज इक्वल टू सब के सब 0 हो जाए। अगर L M सब के सब 0 हो गया मेरे पास, तो ध्यान से देखो जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन था वो क्या हो जाएगा? वो तो आइडेंटिटी हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बच जाता। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं L M सबको 0 कर दूं, तो लास्ट मेरे पास आ रहा है तो इक्वलिटी साइन इज नॉट देयर, सो ऑलवेज ओनली ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का साफ मतलब है कि जो मुझे चाहिए था रूट्स वो केवल ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है। सो 100% जो रूट्स मेरे पास आ गए हैं उससे मैं अपना स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का उसको जस्टिफाई कर सकता हूं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। Good, Adi. Good try. Okay, everyone? Understood? Right. See, एक और क्वेश्चन दूंगा ध्यान से, बट ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मैं बोलूंगा एक बार इसी क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग देख लो, राइट? देन ओनली आई कैन प्रोसीड फर्दर कि आगे देखें, राइट? पहले इसी क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देख लें। A plus B minus 2C into x square minus 2A minus B minus C into x plus A minus 2B plus C is equal to 0, right?
find roots of this quadratic equation. Find roots of this quadratic equation. Yes, युवराज, क्या समझ में नहीं आया बच्चा? लास्ट पार्ट फिर से देख लो एक बार, राइट? ये मैंने इसे इस तरह से ब्रेक किया इस क्वेश्चन को कि मैंने एक बार 16 लिख दिया और ये 17 के साथ में ये लिख दिया, राइट? तो ये तो एक 16 के साथ में लिखा, वो जैसा था वैसे रहने दिया। ये तीनों से अगर मैं 17 कॉमन ले लूं तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एम द होल स्क्वायर, राइट? वही मैंने लिख दिया, बस। दिस इज योर क्वेश्चन। Equation is given, right? Find roots of this quadratic equation. Yuvraj, raise your hand, please. Yuvraj Sahai. Very good, Adi. Yes, Yuvraj. सर मुझे ये डाउट था कि हमने एंड में तो निकाले थे 16 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 17 एल प्लस एम का होल स्क्वायर, देन हाउ कैन वी रिलेट दैट कि इट इज ग्रेटर देन 0? क्या मजाक कर रहा है? कोई भी स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव सर। दो पॉजिटिव नंबर का सम, दो स्क्वायर का सम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। ठीक है, तीन स्क्वायर के नंबर, दो तीन पॉजिटिव नंबर स्क्वायर के नंबर का सम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव सर। ध्यान से देखो ना, तीन स्क्वायर के नंबर का सम है, दिस मस्ट बी पॉजिटिव ना? यस सर। ओके, अब समझ गया सर, सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया था। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड आदिनाथ, अपर्णा, वेरी गुड। Do it fast, do it fast.
डन। ध्यान से, अगर बहुत सारे तरीके होंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो आप, राइट, वहां से कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो, राइट, तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को आप देखें तो x इज इक्वल टू 1, अगर राइट, इफ x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, राइट, तो एट x इज इक्वल टू 1 दिस इज कमिंग एज a प्लस b माइनस 2c माइनस 2a माइनस b माइनस c plus a minus 2b plus c, right? So open it up, right? A plus a, 2a minus 2a will be cancelled out, right? A with 2a will be cancelled out, b minus minus plus b with 2b cancel out, and c cancel out. So this is going to be 0. Means at 1 this will be 0. So one root is 1 only, right? एक root तो आपके पास 1 आ गया, and we know that product of the root, if one root is 1, alpha into beta is equal to c by a, c by a, right? One root is 1, and then the product will be second root is this one. Is it okay? राइट, बहुत बेसिक से ही हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, बट आप लोग एक बार ट्राई करना इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, व्हाट द डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग, राइट? आप लोग एक बार ट्राई करके इसे देखोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, देन वी कैन डिस्कस दिस, ठीक है? ओके एवरीवन, ओके, very good, very good, very good, very good, right? So this is the last class. Next class के बाद से क्वाड्रेटिक थोड़ा आगे हो जाएगा, तो पुरानी कुछ भी चीज आपको लगती हो, अलग से आपको क्लास चाहिए, पूछना हो या समथिंग, तो यू कैन मैसेज मी ना, मैं अलग से टाइम दे दूंगा, यू कैन आस्क अस, ठीक है? बोरी बरी वाले भी जितने लोग हैं, डू यू हैव माय नंबर ना?